Anyone? सारे डिजिट को 9 में से सब्जेक्ट करना। Okay. And tens complement? सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को 10 में से करने का और बाकी सारे को 9 में से। Yes. Okay, same for ones and twos. Ones को डायरेक्टली आपको replaced by 1 and 0. And twos complement में क्या करना है? What is twos complement? Adding 1 to its ones complement. Okay. And another direct method? टाइम नॉन ઝીરો આવે ત્યારથી પછી Okay. એનું કોમ્પ્લિમેન્ટ કરી દેવાનું. हाँ, actually first you have to continue up to first non-zero digit 1 સુધી. Okay, and after that, after first one को as it is रखना है. After first one जितने भी digit है सबको आपको क्या करना है? Change करना है. 0 replaced by 1 and 1 replaced by 0. Okay, now next one, binary codes. First of all, what is binary code? This particular codes, actually it is very useful to represent your number in different format. Okay, in this way binary code divided into numbers of categories, like first one. Okay, first of all, what is binary code? Any discrete element of information that is distinct among group of quantity can be represented by binary code. Okay, कोई भी आपको नंबर दिया है उसको डिफरेंट फॉर्मेट में आप उसको क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो एज पर योर एप्लीकेशन, बट ऑलवेज इट इज इन पैटर्न ऑफ zeros and ones. Okay, so here I just write the digital number like from 0 to 9. Okay, and this all 1 2 3 4 5 all are the binary codes, not like yes मैम તમારો વોઇસ લાઈક થાય છે। ओके, यहाँ पे तो वैसे सब परफेक्ट है। अगर आप किसी ने वीडियो ऑन किया है ना तो उसको ऑफ कर देना और बाकी सब भी अपने माइक को ऑफ रखना। Okay, so 5 binary codes here given, but not only 5 binary codes, there are numbers of binary code. By using this we can represent our numbers in different format. Okay, first of all BCD, it is a 8421. Okay, so 8421 is nothing but as like a binary representation, and full form of BCD, it is a binary coded decimal. ओके जैसे आप बाइनरी में लिखते थे सेम ही लिखना है। 2⁻0 2⁻1, यहाँ पे क्या है 2⁻2 एंड यहाँ पे क्या है 2⁻3। डिपेंड अपॉन वेट उसका सम करके आपको वहाँ पे 1 प्लस करना है। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 है, सो वी हैव टू राइट ऑल वेट 0। ओके, नाउ इफ इट इज अ 1 तो 1 कहाँ पे है? फर्स्ट एट 2⁻0 पे, सो यू टू राइट 1 हियर। इफ इट इज अ 2, सो 2 कहाँ पे है? यहाँ पे इस लाइन में सेकंड नंबर पे, सो वी टू राइट 1 एट सेकंड नंबर वेट पोजीशन। सेम फॉर 3, सो इट इज यू कैन जस्ट राइट 2 + 1, सो कितना होगा 3। सो वी कैन राइट 2 की जगह पे भी 1 करना एंड 1 की जगह पे भी 1 करना। इन दिस वे यू टू राइट ऑल दिस नंबर फ्रॉम 0 to 9। Okay, but very important, this BCD only give you the 0 to 9 digit. After this like 10 to 15, okay, because if we are considering 4 digit or 2⁻4, means by using this 4 digit we can write 16 combination. Okay, by using 4 digit 2⁻4 means 16. By using this code we can write 16 combination, but यहाँ पे हमने कितने लिखे हैं? ओनली 9। सो बाकी के जितने भी 6 कॉम्बिनेशन है दिस आर कंसिडर एज ए इलीगल कोड्स इन BCD. It is very useful for the addition. Okay, now voice is clear? Hello? Yes ma'am. Okay, now next one is the XS3. XS3, it is a just you have to add 3 in BCD. Add 3 in BCD, or you can add in decimal number also. Like यहाँ पे 0 है, so you have to consider 0 + 3. 0 + 3 means क्या होगा? 3. So you have to write the binary of 3. तो 3 का binary क्या है? 0 0 1 1. So you have to write 3. Okay, in every decimal digit you have to add 3 and then write a binary.
सेम 1, सो 1 प्लस 3 क्या होगा 4. सो व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 4? 4 कहाँ पे है? यहाँ पे 4, तो इट इज a 0 1 0 0. सेम फॉर 2, 2 प्लस 3 5. So what is the binary of 5? 0 1 0 1. So you have to write 0 1 0 1. In this way you can complete this exercise 3. Okay. Now next one, it is a 8 4 minus 2 minus 1. तो सेम आपको वेट को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है. 0 है सो इट इज a 0. 1 है सो हम कैसे लिख सकते हैं उसको? देखो यहाँ पे कैसे लिखा है. 4 minus 2 कितना होगा? 2. 2 minus 1 कितना होगा? 1. So we can write 3 at a 3 weight position. ओके 3 वंस आपको लिखने हैं 3 वेट की पोजीशन पे. ओके सो इट इज a 4 minus 2 means 2, 2 minus 1 means 1. किसका डेसिमल लिखना था? 1 का. सो बाय कंसिडरिंग दिस 3 मीन्स और एडिशन ऑफ दिस 3 वी कैन फाइंड 1. तो तीनों जगह पे मुझे 1 प्लस करना है. सेम फॉर 2, सो वी कैन राइट 4 minus 2, तो कितना हो सकता है? 2. सो वी कैन राइट लाइक 2 हियर 2 पोजीशन पे, 4 and 2 पे. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैंने लाइक 2 minus 1 को सिंपली किया या 4 minus 1. ठीक है, आप जो भी सबट्रैक्ट करें डिजिट को उस जगह पे 1 लिखना है. जैसे यहीं पे है कि लाइक कितना है 3, तो 3 मुझे कैसे मिल सकता है? 1. इट इज़ a 4 minus 1, सो 3. सो इट इज़ a 0 1 0 1. ओके नाउ 4. ओके सो 4 कहाँ पे मिलेगा? सिंपली यहाँ पे 4 है तो आई जस्ट राइट 4. ओके नाउ नेक्स्ट क्या होगा? 5. So 5 का क्या बोला? 8 minus 3 means 5. So 8 minus 2 means 6 and 6 minus 1 means 5. So इन तीनों जगह पे आपको क्या लिखना है? 1. So it is a 1 0 1 1. Okay, same for 8 minus 2. So कितना होगा? 6. So दोनों जगह पे आएगा. Same for 7. So it is a 8 minus 7. Okay, same for 1. Sorry 8. तो एक ही जगह पे है so we can write 1. And last है 9. 9 कैसे मिलेगा मुझे? 8 plus 4. सो कितना होगा? 12. 12 minus 2 10. 10 minus 1 9. सो चारों डिजिट यहाँ पे यूज हो चुके हैं. सो हमें चारों 4 जगह पे क्या लिखना है आपको? 1. ओके सेम फॉर लाइक 8 4 2 1. देखो ठीक है, इसमें अगर मैं 0 है तो 0 ही लिखना है, 1 है तो 1 ही लिखना है. लेकिन 2 के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है. यू कैन राइट हियर और एज वेल एज हियर. अब 4th पोजीशन पे भी 2 है, 2nd पोजीशन पे भी 2 है. सो यू कैन कंसीडर एनी वन पोजीशन. आप चाहे तो यहाँ पे 1 0 0 0 भी लिख सकते हैं और 0 0 1 0. लेकिन दोनों जगह पे 1 1 नहीं करना है जहाँ पे 2 है. यू कैन यूज एनी 2. ओके कोई भी एक 2 की प्लेस है वहीं पे 1 करना है. दोनों जगह पे करेंगे तो 2 plus 2 क्या हो जाएगा? 4. ओके सेम फॉर 4. देखो तो 4 के लिए ये भी हो सकता है और मैं अगर 2 plus 2 करूँ फिर भी हो सकता है. ठीक है, सो यू कैन राइट एनी वन कॉम्बिनेशन. सो यहाँ पे क्या लिखा है? 0 1 0 0. आप 2 plus 2 करके भी उसको 4 कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इट इज ए बाइक्यूनरी. सेम, लेकिन यहाँ पे कौन सा डिजिट है? 5 0 4 3 2 1 एंड 0. सो डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आपको सबका एडिशन करते जाना है. फर्स्ट क्या दिया है? देखो मुझे 0 0, लेकिन अब यहाँ पे 0 मुझे दिया हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे आपको 1 लिखना है. आप कोई भी एक पोजीशन पे लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन अगर दोनों पोजीशन पे लिखेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 0 plus 0 क्या होगा? 0. सेम फॉर यहाँ पे देखो 1. सो यहाँ पे 1 की जगह पे भी लिखा है 0 की जगह पे. सो 1 plus 0 क्या होगा? 0. दैट्स वाई. बट आप चाहे तो सिर्फ एक 1 की जगह पे भी लिख सकते हैं. सेम है 2. ठीक है, तो 2 में क्या है? देखो 2 है सिर्फ यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 0 0 0 1 0 0. यहाँ पे क्या दिया है? 0 पे भी 1 लिखा है, सो नो प्रॉब्लम. 0 plus 2 क्या होगा? 2. ठीक है, सेम फॉर 3. 3 के लिए क्या कर सकते हैं? 3 की जगह पे आपको 1 करना है. 0 की जगह पे आप चाहे तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. सेम फॉर 4. सो 4 की जगह पे 1 प्लस करना है. सेम 5 की जगह पे 1 प्लस करना है. ठीक है, 6 है तो क्या होगा? 4 plus 1 सॉरी 5 plus 1 भी 6 है and 4 plus 2 भी 6 है. So you can use any one combination and you can write your binary numbers. Okay, so these are the BCD codes, sorry binary codes. Means in this format you can represent your binary number as per your application or as per your requirement. आप BCD भी use कर सकते हैं, XS3 भी use कर सकते हैं, 8 4 minus 2 minus 1 2 4 2 1
and 50432110. But what are the different between these 5? Okay, XS3 आपने कैसे फाइंड किया? यूजिंग वेट? नो. XS3 कैसे फाइंड किया हमने? जस्ट वी हैव टू ऐड 3 इनटू BCD नंबर. हमने यहाँ पे क्या किया? 3 ऐड कर दिया इसमें और फिर लिखा. So this particular code, it is called as a non-weighted code because it is not dependent upon weight. Okay, आपको ऐसा पूछे like in GTU exam, if they ask like explain the non-weighted code, so it is a XS3. Okay, because हम उसको क्या कर रहे हैं, जो आगे है BCD में ऐड करके हम XS3 फाइंड कर रहे हैं. BCD में क्या ऐड कर रहे हैं? 3. ओके, आफ्टर दैट हम उसको फाइंड कर रहे हैं. तो इसीलिए दिस पर्टिकुलर कोड इट इज कॉल्ड एज अ नॉन वेटेड कोड एंड ऑल अदर रिमेनिंग कोड डिपेंड अपॉन वेट. 2421 2484 -2 -1 डिपेंड अपॉन वेट. ये सारे वेट्स है उसके ऊपर जो लिखे हैं उस पर डिपेंड है. दैट्स व्हाई ऑल 4 आर द वेटेड कोड्स. ओके, नेक्स्ट वन 8421 जो आपको BCD बोला, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है इसमें. Each decimal digit 0 through 9 is coded by 4-bit binary number. First one 8421 उसके weights है. Okay, it is a weighted code and these are the illegal codes. कौन से illegal codes है? 10, अगर 10 का binary लिखते हैं आप तो 10, 11, 12, 13, 14 and 15 because BCD consider only 0 to 9. After 9 to 10 to 15 it is considered as a illegal codes. ठीक है, जैसे ये है. ठीक है, तो 8 + 2 क्या होगा? 10. So 1 and here 1. So it is a illegal code. Same for last 15, वो भी क्या है? Illegal code consider into BCD. Okay, and it is a less efficient than pure binary. Of course it is a less efficient because हमने 6 से उसको तो क्या कर दिया? Illegal consider कर दिया. So pure binary comparison में उसकी जो efficiency है वो lower है. Arithmetic operation are more complex than in प्योर बाइनरी बिकॉज अगर इलीगल कोड जनरेट हो रहे हैं तो आपको 6 उसमें ऐड करना पड़ता है बिकॉज 6 आर रिमेनिंग इन BCD. सो अरिथमेटिक ऑपरेशन इट इज ए कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू प्योर बाइनरी. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन किया देखो. ओके, फर्स्ट में एडिशन किया 25 + 13, सो इट इज ए 38. ओके, सो मैंने क्या किया? 5 का बाइनरी लिखा, 2 का बाइनरी लिखा यहाँ पे, उसके बाद 3 का बाइनरी मेंशन किया एंड 1 का बाइनरी. आफ्टर दैट एडिशन करना है. सो 1 + 1 क्या होगा? 1 0 0 इट इज सम, 1 it is carry, so carry it is forwarded into second position, so it is a 1 + 1, again it is a 0 and 1, again 1 + 1 it is a 0 and 1, so 1 we can write here, again 1 1 0 and 0. okay, अब ये वैल्यू मुझे कौन सी मिली है? कंसीडर करो ये कौन सी वैल्यू है? 8. What is the decimal value of this binary number? 2⁻0, 2⁻1, or you can consider 8421. So it is 8 4 2 1. तो 8 की जगह पे 1 है, मतलब ये कौन सा डेसिमल वैल्यू है? 8 and it is a 3 जो यहाँ पे भी ऑलरेडी दिया हुआ है. So 3 and 8 both are the legal codes. लीगल कोड को इनलीगल कोड कौन से है? 10 11 12 13 14 and 15. अगर आपके एडिशन में लीगल कोड जनरेट हो रहे हैं देन इट इज नॉट अ इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर इलीगल जनरेट हो रहे हैं देन वी हैव टू ऐड दिस नंबर इन अदरवाइज वी हैव टू ऐड 6 टू दिस नंबर. हमें इस नंबर में क्या ऐड करना है? 6. वाई 6 ही ऐड करना है, दूसरा कोई नंबर क्यों नहीं करना है? बिकॉज 15 - 9 कितना होता है? 6. 6 इलीगल कोड से इसमें देखो ये 6 क्या है? 1 2 3 4 5 6. 6 क्या है? illegal codes. That's why if your sum is wrong, not corrected, means illegal codes are there, then we have to add 6 into your result. जैसे यहाँ पे दिया है देखो आपको. ओके, फर्स्ट आपको किसका बाइनरी एडिशन पूछा है? 679.6 536.8. सबका बाइनरी आपको मेंशन करना है, उसका क्या करना है? एडिशन. ठीक है, अब देखो जितने भी है सारे इलीगल कोड है. जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 1 1 1 1, सो 8 4 2 प्लस ये कितना हुआ? 8 + 4 मीन्स 12, 12 + 2 मीन्स 14, सो इट इज ए 14. ये क्या है? 15. ये क्या है? 10. और ये कितना होगा? 8 + 2 11. सो ऑल आर द इलीगल कोड्स. तो हमें उसमें क्या ऐड करना है? 6, बट नॉट लाइक अ डेसिमल वैल्यू 6. यू हैव टू कन्वर्ट दिस 6 इनटू बाइनरी.
तो 6 का बाइनरी क्या होगा 8 4 2 1, सो इट इज ए 4 प्लस 2 मीन्स 6, सो वी हैव टू ऐड दिस 6, जितने भी आपको बाइट्स मिले सब में क्या ऐड करना है 6 ऐड करना है. नाउ अगेन यू हैव टू डू द एडिशन. ओके, सो एडिशन यहाँ पे क्या एक कैरी जनरेट हुई, वो सिंपली कैरी यहाँ पे 1 + 1 ऐड करके आपको दिया, आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे जो भी आपको आंसर मिला है ना इंडिविजुअल बाइट के एडिशन का, वो आंसर मेंशन किया और कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड कर दी है, बट अगेन इट इज ऑलवेज फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, सो 1 अगर जनरेट हो रहा है तो इसमें जाएगा, यहाँ पे 1 जनरेट हो रहा था इसमें जाएगा, यहाँ पे 1 जनरेट हो रहा था यहाँ पे जाएगा. बट यू कैन डायरेक्टली परफॉर्म द एडिशन एंड कैरी यहीं से फॉरवर्ड कर देनी है. लाइक 1 + 1, so it is 0. Again 1, 3 times 1 means 1 and 1. Again it is a 1 + 1, so it is 0 and यहाँ पे क्या जाएगा 1. Again it is a 1 + 1 means 0 1. ठीक है, सो कैरी ऑलरेडी अगर यहाँ पे है तो ये 0 आएगा. यहाँ पे 1 क्यों आया है, बिकॉज कैरी फॉरवर्ड नहीं की है, आफ्टर 1 स्टेप कैरी फॉरवर्ड की है. बट डोंट डू दिस, वी कैन जस्ट राइट 1 हियर और आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. कैरी जो भी उसको प्रोपोगेट करनी है. ठीक है, सिंपली एडिशन ही है, बट मेक श्योर कि इफ इलीगल कोड्स आर जनरेटेड देन वी हैव टू ऐड 0 1 1 0 to each. It is nothing but 6. And why we are adding 6? Because only 6 elements are remaining in your BCD, because 6 are the illegal codes. Okay, sometimes if sum of 2 digits are less than 10, BCD addition is similar to binary addition, but sometimes if sum is greater than 9, अगर 10 से लेस है then BCD addition is same as binary addition. लेकिन अगर if sum is greater than 9, 10 11 12 13 14 and 15, the result require the correction, and this correction is 6 0 1 1 0. Okay, why do we add 6? मैंने already आपको बता दिया है. Why not some other number? Because 6 are only illegal codes, that's why we are adding 6. Okay, so जैसे ही हम उसमें 6 ऐड करेंगे आपका सम क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो इट इज अ BCD एडिशन. एक्चुअली इन सेकंड चैप्टर दिस टॉपिक इज आल्सो कवर्ड. इट इज अ BCD अर्थमेटिक करके. सो इन दिस वे, इन दिस पर्टिकुलर थियरी यू टू जस्ट राइट द ब्लॉक डायग्राम. ब्लॉक डायग्राम में क्या आएगा, फर्स्ट BCD, उसमें आपको क्या करना है 6 ऐड करना है. सो इट इज कन्वर्टेड इनटू करेक्टेड सम. इट इज लाइक BCD एडर. उसका अगर आपको डायग्राम पूछे तो वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन, इट इज ए complicated compared to addition always. Okay, so subtraction कैसे करते हैं, चलो 2 - 1, so क्या आएगा 1. ठीक है, 2 - 1 मैंने यहाँ पे लिया है. ठीक है, सेम यहाँ पे क्या था 0 0 यहाँ पे मैंने लिया है. सो 0 - 0 क्या, सॉरी 1 यहाँ पे फॉरवर्ड होगा. ठीक है, तो 1 - 1 क्या होगा, सॉरी 1 - 0 मीन्स 1. मैंने यहाँ पे 2 लिया था, ऑफ कोर्स यहाँ पे कौन सी बोरो आएगी 1, सो 1 का 1, बिकॉज यहाँ पे 0 है इसलिए 1 - 0 मीन्स 1. सेम यहाँ पे 1 आएगा. 1 कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक 1 नहीं आ जाता नेक्स्ट पोजीशन पे, तब तक बोरो यहाँ पे 1 आती रहेगी. सो 1 - 1 0. जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया वहाँ पे वो बोरो कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा. सो इट इज 0. अगेन 1 - 1 0, 1 - 0 1 0 एंड 0. नो बोरो. सो दिस इज द करेक्ट डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अगर इलीगल कोड जनरेट नहीं हो रहा है सो कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर बोरो जनरेट नहीं हो रही है, सो इट इज ए करेक्टेड सम. लेकिन अगर बोरो जनरेट हो रही है तो आपको जैसे ऐड कर रहे थे 6, इस तरह से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 6. इफ बोरो नॉट जनरेटेड देन कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर बोरो जनरेट हो रही है तभी उसमें क्या है, इश्यू है. ओके, देखो यहाँ पे क्या है, आपको एक नंबर दिया है, सबका फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी लिख देना. बाइनरी किस वेट में लिखना है, 8421 में. ओके, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमें बोरो लेनी पड़ेगी. ये तो सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 1 1 1. यहाँ पे बोरो कौन सी लेंगे, 2 - 1, सो ऑफ कोर्स लेनी पड़ेगी. अब 1 क्या होगा, ठीक है, ये आगे फॉरवर्ड होगा. सो यहाँ पे क्या आएगा 0. तो इस पर्टिकुलर टर्म में मैंने क्या ली है, बोरो. ठीक है, सेम फॉर जैसे यहाँ पे क्या लिया मैंने 1, सो 1 - 1 0. ये इसको 0 कर देगा तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 2 - 1 1. सेम यहाँ पे इसको 0 करेगा, 2 - 1 1 1 यहाँ पे फॉरवर्ड होगा. सो इट इज ए क्या आएगा यहाँ पे 1. ठीक है, सेम फॉर हियर, अगर 0 0 2 - 1 0, सेम यहाँ पे क्या होगा 1.
ओके, सो जिसमें भी बोरो आप ले रहे, बोरो आप प्रेजेंट, आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या किया, सबट्रैक्ट 0 1 1 0। अगर बोरो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, लास्ट 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिया हुआ है कि 2 - 1, ये इसको 0 कर देगा तो सारे 0, फिर बोरो आएगी नहीं, बोरो कंप्लीट हो जाएगी। जब तक बोरो फॉरवर्ड हो रही है तब तक इश्यू है। अगर बोरो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे टर्म में, तो उसको क्या कर देना है, सिंपली एज इट इज वो 0 रहेगा, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या करना, जितने भी थर्ड 3 टर्म्स में बोरो जनरेट हुई है, तो इन 3 टर्म्स में हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। क्या सबट्रैक्ट करना है, 0 1 1 0, मतलब 6। सिर्फ सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। एंड दिस आर द लीगल कोड्स, ओके। जिसमें बोरो प्रेजेंट है, बोरो आप ले रहे हैं, उसमें करना है। अगर बोरो है वो अगर फॉरवर्ड नहीं हो रही है देन इट्स ओके, तो चलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इट इज ए एक्सेस 3 कोड। अगेन I think you remember this access 3, how we can obtain, we have to add 3 into BCD. That's why it is a 8421 BCD plus 0011, it is a 3. How we can find access 3, add 3 into BCD. Access 3 code, it is a non-weighted code. Main important advantage of this code, it is a non-weighted code, also known as a self-complementing code. And of course these are the illegal codes as like a access 3. इलीगल कोड्स क्यों है, बिकॉज वी कांट फाइंड 0 0 0 0, तो आपको मिलेगा ही नहीं। आप उसका टेबल देख लेना, उसमें सिर्फ आप देख लेना कौन से नंबर है वो मिसिंग है फ्रॉम 0 to 15। 0 आपको मिलेगा ही नहीं एक्सेस 3 में। वाई, क्योंकि 0 मिल ही नहीं रहा। हम 0 अगर है आपके पास, फर्स्ट 0 आता ऑलवेज, तो हम उसमें क्या ऐड कर रहे, 3, 0 + 3, तो 3 का बाइनरी तो उसमें आया ही नहीं है। सेम 1 का भी नहीं आएगा, 2 का भी नहीं आएगा, डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 का। और सेम लास्ट जो तीनों है उसका भी नहीं आएगा, 13 14 15। दैट्स वाई 0 1 2 एंड 13 14 एंड 15 वो टेबल में ही प्रेजेंट नहीं होगा। आप अगर उसको उसका टेबल देखेंगे तो उस टेबल में ही वो प्रेजेंट नहीं है। कहाँ गया, यस, ये देखो 0 1 2 प्रेजेंट इंडायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3rd से, ठीक है। सेम 4 पीछे के जो डिजिट है वो नहीं आएंगे उसमें, कौन से, 13 14 एंड 15। दैट्स व्हाई दिस आर द इलीगल कोड्स। ओके, 13 14 एंड 15 क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज हम किस में ऐड 3 कर रहे हैं, बीसीडी में। अब बीसीडी का लास्ट डिजिट डेसिमल डिजिट कौन सा है, 9। 9 में अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तो क्या आता है, 12। उसके बाद तो बीसीडी नंबर ही नहीं है, क्योंकि बीसीडी में ही 10 से सारे इलीगल स्टार्ट हो रहे हैं। तो 9 + 3 मीन्स 12। सो रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आ गया, 12 तक ही हम एक्सेस 3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो 13 14 and 15, these are the illegal codes, and same for 0 1 and 2. Okay, now most important, why this code, it is called a self complementing code. इसको सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड क्यों बोलते हैं, नॉट लाइक ओनली एक्सेस 3 बट द एक्सेस 3 2421 and 84 - 2 - 1 are the self complementing code. Why this called as self complementing code, because 9th complement of decimal number is easily obtained by changing 1 to 0 and 0 to 1. आपको कोई भी डेसिमल नंबर दिया है, उसका 9th complement we can easily find by changing only 0 to 1 and 1 to 0 in this binary number. Okay, for example आपको एक नंबर दिया है डेसिमल 395, ठीक है। सो उसको अगर आप 2421 में रिप्रेजेंट करते हैं तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाइनरी फॉर्म की बात कर रही हूँ। ओके, अगर 395 को आप 2421 यूजिंग 2421 अगर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। अब मुझे किसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, 9th कॉम्प्लीमेंट 395 का। तो 395 का 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू हैव टू सबट्रैक्ट ईच एंड एवरी डिजिट फ्रॉम 9। तो 9 - 5 4, 9 - 9 0, 9 - 3 6, so it is 604। अब 604 का आप बाइनरी लिखो, अब दोनों को कंपेयर करो, देखो क्या हो रहा है, 1 की जगह पे 0 है एंड 0 की जगह पे 1। सो मुझे 9th कॉम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, 395 का बाइनरी करना है, उसके बाद 1 to 0 and 0 to 1, वो मुझे डायरेक्टली क्या देगा, 9th कॉम्प्लीमेंट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री
Okay, 9th complement of 395 is directly obtained by changing 1 to 0 and 0 to 1. No need to do the 9th complement. That's why it is called as a like a मतलब self complementary code. ठीक है, XS3 भी self complementary है, 2 4 2 1 and 8 4 minus 2 minus 1. ओके, नेक्स्ट वन XS3 एडिशन. जैसे हमने BCD एडिशन किया, सेम फॉर XS3 एडिशन. ओके, XS3 एडिशन. सो ऑफ कोर्स 3 का बाइनरी लिखना है, उसके बाद 7 का. ठीक है, उसके बाद किसका लिखेंगे 2 एंड लास्ट क्या आएगा 8. ठीक है, यहाँ पे देखो अब फर्स्ट क्या दिया मुझे 3. सो 3 एक्चुअल में तो कैसे होगा 2 + 1, बट हम XS3 है, सो 3 में क्या करते हैं हम 3 + 3 ऐड करते हैं. 3 + 3 मीन्स क्या होगा 6. तो एक्चुअल में आपको बाइनरी यहाँ पे किसका लिखना है 6 का. ओके, इवन आप टेबल देखेंगे ना 3 डेसिमल है, उसके सामने आपने XS3 क्या लिखा है, तो आपने 6 का लिखा होगा, बिकॉज वी हैव टू ऐड 3 into BCD. सो 3 मतलब किसका लिखना है 6 का. 7 मीन्स किसका लिखेंगे 10 का. So it is a 8 plus 2 means 10. Same 2 दिया है, तो 2 plus 3 means 5. So 4 plus 1 means 5. And 8, so 8 plus 3 means 11. So we have to write 11 का यहाँ पे बाइनरी लिखना है. ठीक है, 12 तक आप जा सकते हैं, बिकॉज 9 plus 3 means कितना होगा 12. 9 BCD में लिमिट है, उसमें 3 ऐड करेंगे तो 12. मतलब XS3 की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 3 to 12. बाकी के आगे के और पीछे के इलीगल कोड्स. ओके, नाउ एडिशन करना है. कैरी यहाँ पे जनरेट हो रही है, देखो तो आपको एक ऑप्शन दिया है, कैरी अगर जनरेट हो रही है देन यू हैव टू ऐड, और कैरी प्रोपोगेट करनी है नेक्स्ट ग्रुप में, तो उसका आंसर ये आ रहा है. नाउ ऐड 0 1 1 टू ग्रुप विच जनरेट द कैरी. कौन सा ग्रुप है वो कैरी जनरेट कर रहा है फर्स्ट वर्ड, तो उसमें क्या करना है हमें ऐड करना है क्या 0 0 1 1. 0 0 1 1 क्या 6. Why we are adding 6? Because again, as like a BCD, 6 are the illegal codes in XS3 also. Okay, so 0 0 1 1 add करना है, but if carry it not generated, तो उस particular term में क्या करना है subtract करना है 0 0 1 1. Okay, आप addition कर रहे हैं, आपके पास 2 term है और 2 word है और 2 bytes है. अगर first word है उसमें अगर bytes है उसमें generate हो रही है carry, तो आपको ऐड करना है. क्या ऐड करना है 0 0 1 1. 0 0 1 1 मीन्स क्या है 0 0 1 1 मीन्स क्या है ओके 6, बट लाइक यू टू कंसीडर 0 0 1 1 मीन्स एक्चुअल में क्या होगा 3 प्लस XS3 है, तो हम क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, सॉरी एक मिनट, 0 0 1 1 मीन्स 3. ओके, इसमें एक्चुअली आपको जो 6 है ना उसको कंसीडर नहीं करना, बट 3 मतलब XS3 उसमें जो आप 3 ऐड कर रहे हैं ना उसको कंसीडर करना है. मतलब XS3 मीन्स क्या है BCD में क्या ऐड कर रहे हैं हम 3, तो आपको यहाँ पे 3 का बाइनरी मतलब क्या होता है 3 का बाइनरी 2 + 1. तो उस 3 का बाइनरी आपको यहाँ पे क्या करना है सबट्रैक्ट करना है. आप जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको +3 ऐड करके उसको कन्वर्ट करना है. ठीक है, कैरी जनरेट हो रही है तो उसमें +3 ऐड करना है, कैरी जनरेट नहीं हो रही तो उसमें 3 को क्या करना है सबट्रैक्ट करना है. इस पर्टिकुलर जो बाइट है उसका क्या होगा एडिशन और इसका क्या होगा सबट्रैक्शन. सो 2 - 1 क्या होगा 2 - 1 1. ठीक है, सेम यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया तो 1, सो 1 - 1 0. ये यहाँ पे 1 लिया बोरो तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 - 0 एंड 1 का 1. सेम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है. 1 + 1 क्या होगा 0 इट इज सम एंड 1 इट इज अ कैरी. अगेन 1 + 1 0 इट इज सम 1 it is carry. Again 1 + 1, so it is 0 and 1 it is a carry. So it is a 1 0 0 0. It is a XS3 addition. दूसरा दिया आपको यहाँ पे देखो सेम XS3 में ही, उसके बाद उसका सब्ट्रैक्शन आएगा. देखो सेम नंबर लिया 2 का क्या करना है 2 + 3 मीन्स क्या होगा 5, तो 5 का बाइनरी लिखना है. ठीक है, सेम सारे नंबर का आपका यहाँ पे करना है. ठीक है, एडिशन हो गया. नाउ अगर फर्स्ट कौन सी टर्म में जनरेट हो रही है देखो यहाँ पे, एक तो स्टार्टिंग में ये दोनों टर्म में जनरेट हो रही है. ठीक है, ओके, फिर यहाँ पे जनरेट हुई, मैंने वापस ऐड किया इसमें जनरेट हुई. आप ये इंडिविजुअल मत करना,
सिंपली ऐड करके देख लेना, ये तीनों टर्म में क्या होगी, कैरी जनरेट होगी। ठीक है, इन तीनों टर्म में। तो उस तीनों टर्म को मुझे क्या करना है, तीनों टर्म में ऐड करना है 3। एक टर्म एक बचेगी जिसमें मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इजी। वन टाइम अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, सो इट इज़ वेरी इजी। इफ कैरी इज जनरेटेड देन वी हैव टू ऐड 3, अदरवाइज वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे उसने इंडिविजुअली लिया हुआ है, 1 को क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड किया है। आप उसी स्टेप में फॉरवर्ड करके डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेप में कैरी मैंने फॉरवर्ड की थी। अगर 3 स्टेप में की है तो उन तीनों में मुझे ऐड करना है, एंड 1 जो रिमेनिंग है जिसमें कैरी फॉरवर्ड नहीं हुई है और नॉट जनरेटेड कैरी, उसको क्या करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3। सो यू कैन फाइंड दिस आंसर। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन, इट इज ए मोर कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू एडिशन। ओके, देखो फर्स्ट आपको दिया है 2 6 7 1 7 5। सो इट इज 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, 2 का क्या होगा, 2 + 3 मीन्स 5। सो वी हैव टू राइट द बाइनरी ऑफ 5। सेम ऑल अदर डिजिट के लिए आप बाइनरी लिख दीजिए। आफ्टर दैट वी हैव टू कंसीडर द सब्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया नंबर को। अब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट 0 0 1 1 टू ग्रुप विच जनरेट द बोरो। तो फर्स्ट तो देखना पड़ेगा बोरो कहाँ पे जनरेट हुई थी। ठीक है, ये पर्टिकुलर टर्म है उसमें बोरो जनरेट हो रही होगी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स देख के पता चल जाएगा। देखो ये 0 0 तो क्या होगा 0, 1 - 0 1, 0 0 0, 1 - 1 0, तो कैरी जनरेट हुई, नो। यहाँ पे 1 - 0 1, 2 - 1 1, 1 - 0 1, अगेन यहाँ पे 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, 2 - 1 क्या हुआ, यहाँ पे 0, तो मैंने क्या लिया 2, 2 - 1 तो क्या आएगा 1, और बोरो क्या हुई, यहाँ पे जनरेट हुई है। सो बोरो है वो 2 फॉर्म में। ओके, यहाँ पे बोरो जनरेट हो रही। अब यहाँ पे देखो ये बोरो यहाँ पे फॉरवर्ड हुई है, ओके, नॉट जनरेट। यहाँ पे सेकंड टर्म में वो जनरेट हो रही है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया था एक्चुअल में 2 - 1, सो इट इज ए 1, तो उसकी वजह से ये 1 क्या हो जाएगा 0। तो नाउ इट इज इजी, 0 - 0 0, 0 - 0 1 - 1 0 एंड 0 - 0। ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड उसमें बोरो जनरेट नहीं हो रही है, बट सेकंड टर्म जनरेट द बोरो। तो सेकंड टर्म में मुझे क्या करना है, 0 0 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड बाकी की जो दोनों टर्म्स है उसमें ऐड करना है। ठीक है, बोरो जनरेटेड देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, and not generated then no need to subtract, we have to add 0 0 1 1. Next again subtraction. okay subtraction में क्या है, देखो आपको एक नंबर दिया 5 7.6 and 2 7.8 माइनस अगेन 5 + 3 8, तो 8 का बाइनरी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इन दिस वे आपको सबका बाइनरी लिख देना है। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये दोनों टर्म कैरी जनरेट कर रही होगी। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर कैरी नहीं जनरेट हो रही तो ऐड करना है। ठीक है, आप देख लेना कैरी ऑफ कोर्स जनरेट होगी, बिकॉज यहाँ पे क्या है 0 - 1 वो नहीं हो सकता है। तो ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे कुछ 2 वगैरह लिया होगा, उसकी वजह से बोरो क्या होगी, जनरेट होगी। सेम 4 हियर, जैसे यहाँ पे मैंने 2 - 1 किया तो इट इज 1, यहाँ पे क्या आएगा 1, सो इट इज 1 का 1, ये 1 इसको 0 कर देगा। देन अगेन आई हैव टू टेक 1 2, तो 2 - 1 1, अगेन यहाँ पे क्या आएगा 1, वो 1 यहाँ पे आगे जाएगा, सो इट इज ए 2 - 1, सो इट इज ए 1, अगेन ये 1। ठीक है, 1 यहाँ पे जाएगा, इट मेक्स 0, सो इट इज ए 2 - 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 1 हो गया तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। सो सिर्फ एक ही टर्म कैरी जनरेट नहीं, बोरो जनरेट नहीं करेगी, बाकी की 2 टर्म करेगी। जो भी करेगी उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो भी नहीं करती है बोरो जनरेट, उसमें क्या करना है, ऐड करना है। नेक्स्ट वन, इट इज ए ग्रे कोड। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम आस्क इन जीटीयू, कन्वर्ट योर नंबर इनटू ग्रे। इसको आप रिफ्लेक्टेड कोड भी बोल सकते हैं, अनदर नेम यहाँ पे लिखा है मैंने, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड। ओके, यू मे आस्क लाइक ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे, कोई भी पूछ सकते हैं कन्वर्जन के लिए। सो ग्रे कोड इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग in this gray code, only one bit change from each pair of successive code word, like 0000 and 0001 में गई 0 to 1। so कितने डिजिट चेंज हुए,
बट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रे कोड में क्या है, ओनली वन बिट चेंज फ्रॉम ईच पेयर ऑफ सक्सेसिव कोड वर्ड. Gray code is called as the reflected code, also known just as a reflected binary or gray code. After Frank Gray, it is a ordering of this binary numerical system such that it is like name of the scientist, such that two successive value differ in only one bit. Okay. सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि मैं लाइक 0 to 1 जाऊँ या फिर 1 to 2 या 2 to 3. डिजिट में क्या होगा, पर्टिकुलर डिजिट एंड नेक्स्ट डिजिट दोनों के बीच में सिर्फ 1 बिट का ही डिफरेंस आएगा. ओनली 1 डिजिट चेंज फॉर इन सक्सेसिव पेयर ऑफ कोड वर्ड. बाइनरी टू ग्रे कैसे कर सकते हैं, इक्वेशन नहीं याद रखोगे फिर भी चलेगा. कैसे करना है बता देते हैं आपको. सिंपली एक्सओर लेना है. किसका एक्सओर लेना है वो इंपॉर्टेंट है. कन्वर्जन ऑफ n बिट बाइनरी नंबर टू ग्रे कोड. ठीक है. सो कैसे लिया देखो, फर्स्ट डिजिट gn इज इक्वल टू bn, मतलब ये हायर प्रायोरिटी और हाईएस्ट वेटेड डिजिट 1, उसको एज इट इज रखना है. नेक्स्ट डिजिट को क्या करना है, नेक्स्ट डिजिट को उसका जो प्रीवियस डिजिट आया बाइनरी प्रीवियस डिजिट, ओके, ये उसके साथ उसको एक्सओर करना है. नेक्स्ट का अगेन प्रीवियस के साथ एक्सओर करना है एंड इट इज अ कंटिन्यू. सो इट इज अल्टीमेटली द एक्सओर. एंड व्हाट इज एक्सओर, when XOR gives you 1, चलो कौन बताएगा what is the XOR gate. when we are finding 1 in XOR table, truth table, 1 कैसे मिलेगा हमें XOR में, कौन से कॉम्बिनेशन के लिए 1 मिलेगा मुझे XOR में. For which combination in XOR we can find 1. आपने XOR गेट पढ़ा था ना, XOR गेट, उसमें 1 1 कौन से कॉम्बिनेशन के लिए आ रहा था, 0 1 या फिर 1 0. Yes, means if two digits are different then we can find 1. And it's called as the inequality detector also, this XOR gate. Okay, ठीक है. सो सिंपली आपको बहुत इजी है बट ध्यान रखना है इसमें. ठीक है, ये एग्जाम में कंपलसरी आएगा ही, कन्वर्ट ग्रे टू बाइनरी और बाइनरी टू ग्रे. आपको फर्स्ट क्या बोला है, बाइनरी टू ग्रे. सो क्या करना है, सिंपली आपको फर्स्ट जो डिजिट है ना, इक्वेशन नहीं याद रखोगे तो चलेगा. फर्स्ट डिजिट को एज इट इज रखूंगी मैं 1. उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे देखना है 1 एंड उसका प्रीवियस, उसका क्या करना है एक्सओर. तो 1 एंड 0 का एक्सओर क्या आता है 1, सो इट इज 1. सेम फॉर किसका करना है 0 एंड 0, तो 0 0 का एक्सओर क्या होगा 0. अगेन किसका एक्सओर 0 एंड 1, तो क्या आएगा 1. इट इज वेरी इजी. फर्स्ट 1 को एज इट इज रखना है. उसके बाद आपको इंडिविजुअल जितने भी है उसको प्रीवियस के साथ एक्सओर करना है. सो 1 का 1 एज इट इज, 1 0 एक्सओर, 0 0 का एक्सओर करना एंड 0 1 का एक्सओर, तो बाकी के तीनों डिजिट मुझे मिल जाएंगे. ठीक है, 1 एज इट इज रखना है. उसके बाद 1 एंड 0 का एक्सओर, सो इट इज अ 1. 0 0 का एक्सओर, सो 0 एंड 0 1 का एक्सओर, सो इट इज ए 1. आप प्रैक्टिस करना. ठीक है, इसमें पूरा टेबल भी है ग्रे टू बाइनरी का. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होगा तो आपको दिखाऊंगी अभी. उस टेबल के थ्रू आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी. 0 to 15 आपको बाइनरी नंबर्स लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, 0 to 15 बाइनरी नंबर लिखना है एंड सबको आपको क्या करना है, ग्रे में कन्वर्ट करना है. तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपके लिए. नेक्स्ट उल्टा है, आप ग्रे टू बाइनरी क्या करना है, ग्रे टू बाइनरी. देखो अब क्या करेंगे ग्रे टू बाइनरी में. सो 1 1, it is your gray number 1101. so again same like before, 1 को as it is रखना है and after that 1 into 1 क्रॉस में जाना है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें हम ओरिजेंटल में गए थे बाइनरी में. नाउ यू टू डू इन अ क्रॉस वे. ठीक है, फर्स्ट जो बाइनरी मिला उसको सेकंड जो ग्रे नंबर है डिजिट है उसके साथ एक्सओर करना है. सो 1 एंड 1 का एक्सओर क्या आएगा 0. नेक्स्ट 0 मिला तो 0 एंड 0 का एक्सओर क्या आएगा 0. नेक्स्ट क्या आया 0 एंड 1, तो उसका एक्सओर क्या देगा मुझे 1. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बाइनरी टू ग्रे में मुझे सीक्वेंस में ही जाना है. ठीक है, एंड ग्रे टू बाइनरी में क्रॉस में जाना है. अदरवाइज इट्स वेरी इजी, बाइनरी टू ग्रे एंड ग्रे टू बाइनरी. ठीक है, नेक्स्ट वन, दिस आर द एरर डिटेक्टिंग कोड, बट आई थिंक वी हैव टू स्टॉप.
नेक्स्ट वन इट इज ए थोड़ा बहुत करवा देते एरर डिटेक्टिंग कोड्स है। उसके बाद मैं आई जस्ट गिव यू द सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ एरर डिटेक्टिंग कोड। ओके, लाइक यू जस्ट एज्यूम कि यहाँ पे ट्रांसमीटर है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है। आप क्या है, या फिर आपका मोबाइल या आपका पीसी एक्चुअल में क्या है, रिसीवर। आप क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ नॉइस, जैसे आपने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया या कुछ भी नॉइस आ गया, तो मैं यहाँ पे जो बोल रही हूँ आपको क्लियरली सुनाई नहीं देगा। ओके, सो वी हैव टू डिटेक्ट दिस टाइप ऑफ एरर इन कोड फॉर्म, कि ट्रांसमीटर से एक कोड मैंने सेंड किया, रिसीवर को एक मिला। अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि उसमें नॉइस ऐड हो चुका है? So we have to like modify our error detecting capability, or we have to add some like solution. So receiver know कि yes it is a wrong or it is a right your number. रिसीवर को पता चलना चाहिए, ट्रांसमीटर को तो पता ही है उसने क्या सेंड किया, बट बीच में अगर चैनल में नॉइस है तो रिसीवर को कुछ और ही मिलेगा वहां पे। ठीक है, कोई भी एक डिजिट पे अगर चेंज हो जाता है बाइनरी में, सो 2 का 3 हो जाता है या फिर 2 का 10 भी हो सकता है, इफ एनी सिंगल डिजिट वेरी इन बाइनरी। ओके, so noise can alter or distort the data in transmission. The one may get changed from 0 to 1 and 1 to 0. Because digital system must be accurate to the digit, error can pose a serious problem. जितनी इसके एडवांटेज है डिजिटल सिस्टम के, उतना ही उसमें एरर होने का चांसेस भी ज्यादा है, बिकॉज एक डिजिट पे अगर 0 का 1 हो जाता है तो पूरा चेंज हो जाएगा। सिंगल बिट एरर शुड बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड बाय अ डिफरेंट स्कीम। उसके लिए डिफरेंट स्कीम है कि सिंगल एरर डिटेक्शन, 2 एरर डिटेक्शन, 3rd एरर डिटेक्शन। ओके, सो फर्स्ट इट इज अ पैरिटी, चेकसम, ब्लॉक पैरिटी आर द एग्जांपल ऑफ द एरर डिटेक्टिंग कोड्स। ओके, first of all parity, it is normally used for the single error correction. It is divided into 2 category, even parity and odd parity. Same for checksum, so you can verify like sum, जितने भी डिजिट है सबका सम करना है, और वो सम ऑलरेडी रिसीवर को भी पता है, तो जैसे उसको बीट मिलेंगे वो सबका सम करेगा। इफ सम इज करेक्टेड देन इट इज लाइक कि ये जो सेंड किया था वही मुझे मिला है। एंड सेम फॉर ब्लॉक पैरिटी, अगर पूरा ब्लॉक में सेंड कर रही हूँ, मैंने 5 नंबर सेंड किए हैं ब्लॉक में, तो उसकी इंडिविजुअल मुझे रो भी चेक करनी है एंड कॉलम भी चेक करनी है। ओके, अगर वो वेरीफाई हो जाती है मीन्स इट इज करेक्टेड। So 3 types scheme it is available in error detecting code: parity, checksum and block parity. By in this way we can detect our error as well as correct it also. ठीक है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब बाइनरी कोड्स में एक ही बाकी है, उसके बाद डायरेक्टली आईसी का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका लास्ट टॉपिक होगा आईसी का जो टॉपिक्स है वो। ठीक है, ओके। एंड दिस बीसीडी एडिशन, एक्सेस3 एडिशन, ठीक है, वो आपको सिंपली लाइक फैमिलियर करवाने के लिए है, इट इज नॉट लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो अगर उसमें कोई मतलब आपको ऐसा है कि चलो ज्यादा उसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर भी चलेगा, उसमें एक्सेस3 है, बीसीडी एडिशन है, वो नॉर्मली नहीं पूछते हैं। मेनली इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या है, कन्वर्जन, सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाइनरी कोड से ही, मतलब वेटेड कोड कौन सा है वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एरर डिटेक्टिंग कोड है एंड आईसीस वो पूछ सकता है। बीसीडी एडिशन, एक्सेस3 एडिशन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट स्टिल सिलेबस में दिया है, सो 1 टाइम तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी ही है, मे बी पूछ भी सकते हैं जीटीयू में। ठीक है, और किसी को डाउट है फॉर